Hello students, welcome in the physics class. So today we will start with the principle of conservation of angular momentum. Principle of conservation of angular momentum. This principle states that when the net torque acting on the system is 0, then the angular momentum of the system remains constant. जब हमारे पास क्या है, when net external torque के बारे में चलते हैं हम लोग, external torque acting on the system is 0. Then the angular momentum of the system remains constant. यहाँ पर हमें पता है, हम लोगों ने एक रिलेशन निकाला था, रिलेशन बिटवीन द टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम. So we have found that this dl over dt that is equal to tau external torque. अगर मान लो आपके पास एक्सटर्नल टॉर्क क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, when this tau external that is equal to 0, at that time this dl over dt that is equal to 0. It means that change in the angular momentum with the time that is equal to 0. So we can say that this L that is constant. अब एक चीज और की है हम लोगों ने कि that this angular momentum L that is equal to I omega. It means ये अगर constant है तो ये आपके पास product of the moment of inertia and angular velocity of the system that remains a constant. So that is also constant. It means we can say that I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. इसी प्रिंसिपल को हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेकर के चलेंगे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के. पहली बात हम लोग यहाँ पर अगर एग्जांपल्स लेकर चले बेटा, तो एग्जांपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसके एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग. Examples of conservation of angular momentum. पहली बात हमारे पास, हम लोग प्लैनेट के मोशन की बात करते हैं. यहाँ पर the angular velocity of revolution of the planet increases in the elliptical orbit while it comes closer to the sun. हमारे पास हमें पता है कि that all the planets these revolve around the sun in the elliptical orbit. So when the planet that approaches the sun means it comes closer to the sun in the elliptical orbit, then its angular velocity that increases and vice versa. तो उसकी बात कर लेते हैं. देखो ये हमारे पास क्या है, दिस इज इलिप्टिकल orbit. ये हमारे मान लिया. At the one focus there is sun and the planet that is revolving around the sun, मान लो ये आपके पास आ गया प्लेनेट, दिस इज प्लेनेट. अब ये रिवॉल्व कर रहा है इस साइड को आपके पास. द मोमेंट ऑफ द इनर्शिया, देखो हमारे पास क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम दैट आई ओमेगा दैट इज कांस्टेंट. नाउ आई दैट इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, मास ऑफ द प्लेनेट एंड square of the distance from this, that is the point of revolution. यहाँ से रिवॉल्व कर रहा है, ये मैंने मान ली आर.
एज द प्लेनेट दैट कम क्लोजर टू द सन, मान लो यहाँ जैसे हमारे पास आ रहा है जैसे, तो ये क्या होगा, r decreases. R decreases means that the moment of inertia that decreases because the mass that does not change. Mass आपके पास change नहीं होगा, क्या होगा, R decreases, therefore the moment of inertia that decreases. But this product of moment of inertia and angular velocity that remains constant. Now I decreases, therefore omega increases. Hence, when the planet that come closer to the sun, then its angular velocity of revolution that increases. दूसरी बात करते हैं हम लोग, अगर मान लो सर्कस की बात करें हम लोग कि दैट इन द सर्कस एक्रोबैट दैट परफॉर्म्स द फीट बाय क्लोजिंग द आर्म्स एंड लेग्स और बाय ब्रिंगिंग द आर्म्स एंड लेग्स क्लोजर टू द बॉडी। जैसे मान लो हमारे पास इस तरीके से है, ऐसे इस पहले रख रखी है, आप लोगों ने देखा होगा जो ऐसे गोल गोल घूमते हैं, एक्रोबैट की बात कर ली हम लोगों ने। तो उसको रोटेशन करने के लिए क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि शूज होते हैं, स्केटिंग वाले शूज आ गए, उसमें स्केटिंग आ गई, स्केटिंग करता है कोई भी तो अपने आर्म्स को फैला करके इस तरीके से और लेग्स को भी क्या करता है, वो स्ट्रेच कर करके, लेकिन जैसे वो इनको धीरे धीरे क्लोज करता है तो उसकी रोटेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सो व्हेन द आर्म्स आर दैट आउटस्ट्रेच्ड, देन व्हाट हैपेंस दैट दिस मास, इस मास की जो डिस्टेंस है दैट इंक्रीजेस. So it means that moment of inertia that is a large and hence the angular velocity that is small. But as he holds his arms or legs, then what happens that the moment of inertia that decreases, I decreases and the angular velocity that increases. तो वो कैसे घूम जाता है आपके पास, सर्कल में आपके पास रोटेट कर जाता है. अब बात करते हैं हम लोग इसकी नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें हम लोग that a person standing on the rotating platform with heavy mass in his hands can change the speed of the rotating platform by outstretching the arms and by closing the arms. उसमें क्या होगा आपके पास, moment of inertia that changes, hence what happens that this omega that also changes. ये भी क्या होता है आपके पास, चेंज होता है. नेक्स्ट वन एग्जांपल की बात करें अगर हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा टॉर्नेडो, वाइल्ड विंग जो इस तरीके से बनती है, बहुत सारी लेयर्स बनती हैं हमारे पास विंड की. तो उसमें क्या होता है कि दैट द एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर स्पीड ऑफ द इनर लेयर्स ऑफ द एयर दैट इज अ हाई एज कंपैरिजन टू द आउटर लेयर. आप लोग एक छोटा सा एग्जांपल और लेकर चलते हैं. जैसे मान लो हम लोग क्या करते हैं कि मिल्क है, मिल्क में हम लोग शुगर डिजोल्व करते हैं बाय यूजिंग स्पून से इस तरीके से हम लोग रोटेट करते हैं. तो आप लोग ऑब्जर्व करोगे जो मिडिल वाली लेयर आएंगी जहां से हम लोग रोटेट कर रहे हैं, उनकी जो एंगुलर स्पीड है दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द आउटर. इसका रीजन क्या है कि जो नजदीक है उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, कम है. एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो नजदीक है लेयर उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, कम है. मींस आई कम है तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा. और जो ज्यादा दूर है उनका आई ज्यादा है तो इसलिए ओमेगा क्या हो जाएगा, कम आपके पास हो जाएगा. नेक्स्ट वन हम लोग बात करें अगर दैट ऑल द हेलीकॉप्टर्स आर प्रोवाइडेड विद टू प्रोपेलर्स. एक आपके पास इस तरीके से रोटेट करेगा तो दूसरा आपके पास किसमें, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, रोटेट करेगा. एक आगे होता है और एक पीछे होता है हेलीकॉप्टर में. तो ताकि आपके पास क्या रहे उसमें दैट द नेट चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू 0. अगर मान लो हमारे पास क्या हो जाए भाई, एक अगर आपके पास घूम रहा है तो हेलीकॉप्टर दूसरी साइड को घूम जाएगा टू कीप द मोमेंटम कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट. तो उसी को खत्म करने के लिए क्या होता है कि जो पीछे वाला होता है वो किसमें, अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है. ऐसे ही स्पेस क्राफ्ट है आपके पास, द ओरिएंटेशन ऑफ द स्पेस क्राफ्ट दैट कैन बी चेंज्ड. अब उसको कैसे चेंज करते हैं, इस मामले में ये आपके पास है स्पेस क्राफ्ट इस तरीके से. ये आपके पास एक स्पेस क्राफ्ट है. इसमें आपके पास यहां पर क्या लगा होता है, फैन लगा होता है. लेट द स्पेसक्राफ्ट दैट इज मूविंग इन द स्ट्रेट. हमने क्या करना है, इसके ओरिएंटेशन को घुमाना है थोड़ा सा इस साइड. तो ये जो बीच में फैन लगा है ये वाला है, इसको क्या करते हैं हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में, जिस सेंस में इसकी रोटेशन करनी है उससे अपोजिट सेंस में इस फैन को क्या करते हैं हम लोग रोटेट करते हैं. तो जैसे हमने क्या किया, इसको रोटेट कर दिया,
इस तरीके से ये फैन हमारे पास क्या होगा बेटा, ऐसे रोटेट कर दिया हम लोगों ने इसको, ये फैन। अब इसने क्या कर दिया, इट एक्वायर्स सम एंगुलर मोमेंटम, सो द नेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम दैट इज कांस्टेंट। सो ये जो आपके पास स्ट्रेट लाइंस है वो किस डायरेक्शन में करेंगे रोटेट, इस डायरेक्शन में आपके पास रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड व्हेन द ओरिएंटेशन दैट इज ऑब्टेन्ड, व्हाट हैपेंस दैट दिस फैन इज ऑफ, इसको क्या कर दिया रहता है हमारे पास, ऑफ कर दिया रहता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिसके दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर मान लो एंगुलर मोमेंटम जो है वो सिस्टम का कंजर्व है, इट डजंट मीन दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम दैट इज आल्सो कंजर्व, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, इट डजंट मीन दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम दैट इज आल्सो कंजर्व। इसको देखते हैं, ठीक है। सो when angular momentum is conserved, then kinetic energy is not, kinetic energy of rotation की ही बात करते हैं हम लोग, is not conserved। Kinetic energy of rotation is not a conserved। तो इसमें देखते हैं हम लोग क्या है। According to the principle of conservation of angular momentum, that I omega that is constant, it means that I1 omega 1 is equal to I2 omega 2। Squaring both sides, squaring करके मैंने मेरे पास क्या गया, I1 square omega 1 square is equal to I2 square ओमेगा 2 स्क्वायर। मैं क्या करूं, हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, यहां से एक आई बाहर ले लिया मैंने, I1 हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया और एक आई बाहर ले लिया, दैट इज इक्वल टू I2 हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर। ये मेरे पास है। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, सो दैट इज I1 K1 दैट इज इक्वल टू I2 K2, means K1 over K2 that is equal to I2 over I1। It means kinetic energy that varies inversely as a moment of inertia। ऐसे लिख कर, अगर मान लो आपके पास क्या है, I2 is greater than I1, then K2 is less than K1, और we can say that K1 is greater than K2। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी फॉर द कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम। इट मींस हमारे पास क्या है कि दैट द काइनेटिक एनर्जी दैट आल्सो डिपेंड ऑन व्हाट दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इवन व्हेन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व, देन द काइनेटिक एनर्जी दैट इज नॉट कंजर्व, ये आपके पास कंजर्व नहीं आएगी। अब बात करते हैं हम लोग इसकी, दैट इज द थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये अलग है बेटा आपके पास थोड़ा सा, दीज आर द रिलेटेड टॉपिक, थ्योरम्स ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस बार 2020-21 में ये जो थ्योरम्स हैं, दीज आर इन द रिलेटेड टॉपिक, बट वी यूज these theorems to find the moment of inertia of the body about the given axis। तो यहाँ पर दो आपके पास थ्योरम्स दी गई हैं। पहली आपके पास थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड सेकंड वन इज द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। हम लोग स्टेटमेंट को समझेंगे और करेंगे इनको हम लोग। पहली बात आपके पास दैट इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थोड़ा सा इसको मैं यहां से करता हूं। मान लो ये हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है। मैंने क्या करना है, इस रिजिड बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आई हैव टू फाइंड आउट अबाउट दिस एक्सिस। ये मेरे पास है, ये एक एक्सिस जिसके अबाउट मैं क्या करूंगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो निकालना चाहता हूं। ए बी हमारे पास
यहां पर मैंने मान लिया कि इसका सेंटर ऑफ मास है ये सी, सेंटर ऑफ मास। अब बोलता क्या है इसमें कि दैट द मोमेंट ऑफ दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन रिजिड बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस AB is equal to the moment of inertia of the body about another axis XY passing through the center of mass of the body and parallel to the axis AB। मतलब हमारे पास क्या है, अगर मैं यहां से एक एक्सिस ड्रॉ करूं, कहां से, C से, पैरेलल है दोनों एक्सिस, तो इसका क्या बोला गया है कि दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन बॉडी अबाउट द एक्सिस AB इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट अनदर एक्सिस XY passing through the center of mass of the body and parallel to the given axis plus the product of the total mass of the body and square of the distance between the two parallel axes। इनके बीच की डिस्टेंस अगर मैं मान के चलूं कि ये किसके बराबर है, h के बराबर है, और टोटल मास कितना है, m के बराबर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस AB के अबाउट दैट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस XY which is parallel to AB and passing through the center of mass of the body plus product of the total mass of the body and square of the perpendicular distance between the two axes। This is the theorem of parallel axis। ये कौन सी आ गई, theorem of parallel axis। दूसरी हमारे पास आती है कौन सी, theorem of perpendicular axis। इसको देख लेते हैं। इसमें क्या बोला गया कि अगर हम मान लो हम लोग कोई एक प्लेन लेमिना है, ये लेमिना मीन्स आपके पास टू डायमेंशनल फिगर ऐसे रखे हुए हैं आपके पास। मैंने क्या करना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, ये OZ के। ये दो एक्सिस मैंने मान ली इन द प्लेन ऑफ द लेमिना, x एक्सिस, ये आपके पास y एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस। अब देखते हैं इसमें क्या बोलता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लेमिना अबाउट एन एक्सिस OZ इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेन लेमिना अबाउट द टू परपेंडिकुलर एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द लेमिना मीटिंग एट अ पॉइंट at which the axis OZ passes through the lamina। एक तो बात आपके पास ये OZ क्या आ गई, दैट इज परपेंडिकुलर टू द lamina। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर रहेगा, सम ऑफ द मोमेंट ऑफ द इनर्शिया अबाउट द टू एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस x एक्सिस एंड y एक्सिस which are in the plane of the lamina and meeting at a point where the axis OZ passes through the lamina। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं कि दैट IZ दैट इज इक्वल टू IX प्लस IY। दिस इज द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। इसको जो बोल दिया थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो ये दो थ्योरम का हम लोग यूज करेंगे टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। जब हमारे पास किसी एक्सिस के अबाउट दे रखा है, हम लोग ने दूसरी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हम लोग इसी थ्योरम का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। मोमेंट ऑफ inertia of uniform circular ring। डिफरेंट एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। जब हम लोग ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात की थी तो उसी टाइम बात की थी कि दैट इट डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड पोजीशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन।
इसको हम लोग निकाल के चलेंगे। हमारे पास अगर बात करें, मान के चलते हैं हम लोग, लेट m be the mass of uniform circular ring of radius r, कैपिटल R मैंने इसकी रेडियस मान विद सेंटर O। ठीक है, हमने ये मान लिया यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, यहां पर मैंने ये मान, दिस इज आवर सर्कुलर रिंग। इसकी रेडियस मैंने मान ली किसके बराबर, R के बराबर, और सेंटर मान ली मैंने O। हम लोग निकालेंगे पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस y o y dash perpendicular to the plane of a ring and passing through its center। तो पहला केस आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एक्सिस y o y dash perpendicular to the plane of ring and passing through its सेंटर से पास हो। तो ये मैंने एक्सिस मान ली यहां, दिस इज y o y डैश, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर यहां पर रखा गया है हमारे पास। सो यस, अब हम लोग यहां पर क्या मानते चलेंगे, दैट मास ऑफ द रिंग हमारे पास है m के बराबर है, लेंथ ऑफ रिंग, लेंथ ऑफ रिंग दैट इज 2 pi r, total length that is equal to circumference of the ring. So mass of unit length of ring, मास पर यूनिट लेंथ मतलब यूनिट लेंथ का मास हम लोग मान लें तो किसके बराबर आएगा, दैट इज m/2 pi r, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। मान लो एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया हम लोगों ने ऑफ लेंथ dx, ये यहां रिंग दिस dx है का हम लोगों ने माना। सो कंसीडर a small element of ring of length dx. So mass of the element, मैं बात करूं अगर mass of this element, इस एलिमेंट का मास, देखो ये था मास पर यूनिट लेंथ m/2 pi r इनटू लेंथ हमारे पास किसके बराबर है dx। तो दिस इज द मास ऑफ दिस एलिमेंट। अब ये मास आ गया तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना इस एक्सिस के अबाउट, इसी वाले का। सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the element about the given axis, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया करें तो हमने किया था दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ अ रोटेशन। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास आ गया किसके बराबर, मास कितना इसका m/2 pi r d
स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन किसके बराबर है, r के बराबर इसमें डिस्टेंस आ गई, तो मैंने कर दिया यहाँ पर r स्क्वायर। इस हिसाब से ये आपके पास एक कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास बच गया यहाँ पर क्या, दैट इज m r अपॉन 2 पाई इंटू dx। अब ये निकल गया किसका, एलिमेंट का। हमें चाहिए किसका, पूरे रिंग का चाहिए, तो इस तरह से हमने क्या करना है, इन एलिमेंट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर देंगे। तो एडिशन करते हैं हम लोग बाय इंटीग्रेशन। सो देयरफॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग about the axis y o y dash, that is I is equal to integrated m r upon 2 pi into dx। अब ये जो लेंथ है आपके पास, ये कहां से लेकर करें, 0 से 2 पाई r। देखो यहां से करेंगे और यहीं पर वापस पहुंचेंगे तो टोटल लेंथ कितनी आ रही है, 2 पाई r तक। तो ये आ गया 0 to 2 पाई r, यहां लिमिट लगा। अब I is equal to m r upon 2 पाई, बेटा बाहर आ जाएंगे इंटीग्रेशन के, चेंज क्या हो रहा है, लेंथ की हो रही है, ये कहां से आ रही है, 0 to 2 पाई r और ये dx। इंटीग्रेशन ऑफ dx दैट इज इक्वल टू x, सो I is equal to m upon 2 पाई, m r upon 2 पाई into x 0 to 2 pi r। सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट रखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आ गया, I is equal to m r upon 2 pi, यहाँ पर पहले रखेंगे अपर लिमिट, तो 2 pi r minus 0 लोअर लिमिट। So this moment of inertia I is equal to m r upon 2 pi into 2 pi r। 2 pi से लेकर 2 pi cancel out, m r into r that is equal to m r square। So this moment of inertia that is equal to m r square। This is the moment of inertia of the ring about an axis perpendicular to the plane of the ring and passing through its center। तो ये हमारे पास आ जाएगा मास्टर फार्मूला यहाँ से, याद रखना है इसको। Moment of inertia of the ring about an axis perpendicular to its plane and passing through its center, that is given by I is equal to m r square, where m is the mass of the ring, total mass of the ring, and r is the radius of the ring। ये हमारे पास क्या आ गया, एक पार्ट हम लोगों ने इसका कर लिया। अब बात करते हैं हम लोग कहां से, कि भाई अब यूज करनी है हम लोगों ने थ्योरम्स ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, उनकी बात करते हैं। अब एक एक्सिस के अबाउट तो निकाल दिया हम लोगों ने, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि भाई इसी के अबाउट हमारे पास निकल सकता है। रिंग है वो किसी भी एक्सिस के अबाउट जो है वो आपके पास रोटेट कर सकता है। हम लोग बात करेंगे अब किसकी, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट द डायमीटर्स। डायमीटर क्या होता है, देखते हैं। दूसरा है हमारे पास क्या, दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स डायमीटर। मोमेंट ऑफ inertia of ring about its diameter। मैंने क्या मान लिया, रिंग को मान लिया इन द प्लेन ऑफ द पेपर, यहाँ पर प्लेन ऑफ बोर्ड मैंने मान लिया, आपके पास आ जाएगा प्लेन ऑफ पेपर। ये रिंग मैंने मान लिया, यहाँ पर हमारे पास मान लो ये दो डायमीटर मैंने मान लिया म्यूचुअली परपेंडिकुलर। दिस इज सेंटर O, these are two diameters AB and CD। इस एक्सिस के अबाउट हमें पता है, ये जो एक्सिस हमारे पास आ रही है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, उसके अबाउट हमें पता है, तो वो है परपेंडिकुलर, और ये दो एक्सिस आपके पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर फिर से आ गए। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, दैट आर अप्लाइंग द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस।
ठीक है, मान लो हमारे पास क्या है, लेट AB and CD are two mutually perpendicular diameters of the ring. ये मान, अब यहां से देखें अगर हम लोग तो हमें पता है कि दैट the moment applying the theorem of perpendicular axis, परपेंडिकुलर एक्सिस वाली थ्योरम हम लोग लगा देंगे। तो देखो आई ए बी प्लस आई सी डी दैट इज, इसके अबाउट हमने बोला था कि दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लैमिना इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस व्हिच आर इन द प्लेन ऑफ द लैमिना। तो ये दोनों प्लेन ऑफ लैमिना में है और इसके अबाउट हमें पता है, तो उसके अबाउट हमने निकाला था mr²। तो इन दोनों का सम किसके बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू mr²। अब क्योंकि डायमीटर चाहे कोई सा भी ले लो आप लोग, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू आई डी प्लस ये भी क्या आ गया आई डी, दैट इज इक्वल टू mr²। सो दिस इज 2id दैट इज इक्वल टू mr²। सो id दैट इज इक्वल टू हाफ mr²। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट द डायमीटर। इसका कितना आ गया, हाफ mr², याद रखना है सब्जेक्ट। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट द डायमीटर दैट इज हाफ mr², where m is the mass of the ring and r is the radius of the ring। नेक्स्ट वन हम लोग ऐसा भी निकाल सकते हैं भाई, किसी टेंजेंट के अबाउट भी हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट लेकर के चलते हैं हम लोग यहाँ पर, थर्ड मोमेंट ऑफ inertia of ring about the tangent in the plane of ring। टेंजेंट हमारे पास किसमें ले इन द प्लेन ऑफ द रिंग। अब हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। मान लो हमारे पास ये आ गए इन द प्लेन ऑफ द पेपर, this is one of the diameter and this is center of the टेंजेंट में ड्रॉ कर दूं तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसी के पैरेलल बिंदु लेकर चलना है हम लोगों ने ऐसा। ये टेंजेंट हमारे पास किसमें आ गई, दैट दिस वन इज ए बी था हमारे पास, ठीक है। ये हमने मान ली कौन सी, x1। इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। अब ये दोनों आगे पैरेलल, तो लगेगी थ्योरम ऑफ अ पैरेलल एक्सिस। सो लेट xy be the tangent to the ring in the plane of ring। इसी के प्लेन में आपके पास इन द प्लेन ऑफ द रिंग। नाउ अप्लाइंग द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, the theorem of parallel axis। उसमें क्या बोला गया था कि दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एक्सिस व्हिच इज passing through the center of the body
and parallel to the given axis plus product of the total mass of the body and the sphere of the perpendicular distance between the two axes. तो यहाँ पर अगर हम लोग लगाए तो क्या I x y निकालना है हम लोगों ने, that is equal to moment of inertia about this one, ये हमारे पास है, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, that is IAB, that is diameter plus total mass into square of the perpendicular distance. टोटल मास है इसका और स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दो एक्सिस के बीच की कितने हैं, r के बराबर है, तो उसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। सो दिस I x y दैट इज इक्वल टू IAB अभी निकाला था डायमीटर के अबाउट, दैट इज हाफ mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर। सो दिस I x y दैट इज इक्वल टू 3/2 mr square. This is the moment of inertia of the ring about the tangent which is in the plane of the ring. किसमें आपके पास, in the plane of the ring हमारे पास आता है। नेक्स्ट वन एक और करते हैं हम लोग यहाँ पर, moment of inertia of the ring about the tangent perpendicular to the plane of the ring। अब केस हमारे पास चेंज हो गया, दिस इज नंबर 4, moment of inertia about the tangent in the plane tangent perpendicular to the plane of ring, perpendicular to the plane of ring, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। तो मान लो हमारे पास ये क्या है, दिस इज द रिंग with plane perpendicular to the plane of the paper। हमारे पास ये आ गया इसका सेंटर, दिस इज R, y और y डैश इसके अक्रॉस हम लोगों ने निकाला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट हमें पता, हमने क्या ले लिया कि टेंजेंट के अबाउट निकालना है, वो टेंजेंट जो कि क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। तो यहां से हम लोग अगर ये ड्रॉ करते हैं टेंजेंट, जैसे ये हमने ड्रॉ कर दी टेंजेंट, ये क्या है हमारे पास, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। मान लो ये है हमारे पास P की, इसके अबाउट निकालेंगे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग। अब देखें यहां पर ये दोनों एक्सिस हमारे पास आगे पैरेलल, इसके अबाउट निकालना है, इसके अबाउट पता है, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का पता है, व्हिच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द रिंग। सो वी कैन अप्लाई हियर, दैट इज अ थ्योरम ऑफ द पैरेलल एक्सिस। तो मान लो हमारे पास लेट PQ be the tangent perpendicular to the plane of ring। ये है now apply theorem of a parallel axis, apply theorem of पैरेलल एक्सिस लगाते हैं हम लोग यहां पर थ्योरम, इसके अबाउट निकालना है, इसके अबाउट पता है। सो दैट इज I PQ दैट इज इक्वल टू I y o y dash plus the total mass of the ring into square of the perpendicular distance between the two axes। तो total mass m or square of the distance r। So this IPQ that is equal to
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, वो निकाला था हम लोगों ने mr² प्लस दिस इज आल्सो mr². So this moment of inertia that is equal to 2mr². ये हमारे पास मिल क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट द टेंजेंट व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग. तो हमने चार चीजें की. देखो पहली बात आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट एक्सिस निकालनी है हम लोग ने कौन सी, दैट इज y dash that is equal to mr² अबाउट डायमीटर हाफ mr² अबाउट द टेंजेंट जो हम लोग ने लिखी कैसे, इन द प्लेन ऑफ द रिंग दैट इज 3/2 mr² एंड अबाउट द टेंजेंट व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग. उसकी बात करनी है अपने लोग में आगे की 2mr². तो आप लोगों ने जनरली ये दो चीजें ध्यान में रखनी है. ये जनरली ये सबसे ज्यादा यूज होता है और एक ये वाला यूज हो जाता है. ये दोनों आप लोगों को यहाँ से याद रखना है. ठीक है, निकालना तो आप लोग निकाल सकते हो बट यू शुड नो दीज रिजल्ट्स. इन रिजल्ट्स का आप लोगों को पता होना चाहिए. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग निकाल के चलेंगे दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क का निकालेंगे हम लोग. और फिर से बाकी जो होमोजेनियस बॉडीज हैं उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग डिफरेंट एक्सिस के अबाउट डायरेक्ट रिजल्ट जो है यहाँ पर लिख करके चलेंगे और उन्हीं को हम लोगों ने आगे अप्लाई करना है. फिर देखते हैं फिर हमारे पास क्या रिजल्ट है. ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे से इसको रिवाइज करना है. टिल देन हैव अ नाइस टाइम.